Hi students, the retirement of partnership, question number 4, page number 176. Today we are going to solve the new problem of page number 176, question number 4. So we can start with the help of first what it is as profit and loss adjustment account. First of all, we can write in the books of partnership firm. In that we can write first profit and loss adjustment account, debit and credit. We are supposed to write this way. And second we can write as a balance sheet. Second we are write as a partner's capital. And here we can write balance sheet. So today we are going to start the posting of the last year's balance sheet. Kale, Dore and Pandre. Kale, Dore and Pandre were partners. Profit sharing ratio is a 3:3:2. 3 plus 6 plus 2, this 8. There is a 8 rupees profit. 3 rupees out of 8, 3 is profit is a Kale, 3 is a Dore also, and Pandre is a 2. Balance sheet as it is given, liability given, capital, Kale, Dore, Pandre, creditors, bills payable, this reserve fund, building, plant, machinery, livestock, debtors, stock, bank, everything is given. On 1st April 2018, Mr. Pandre is a retired from the firm, and after that some have a changes, revaluation accounts. Goodwill also it is given of the firms. Out of that, Pandre shares will be raised in the books and write-off also. Already also it is given 10%, 100% write-off from the creditors. Everything is mentioned. One of the very easy and simple problem from last 3 problems. So now first we are going to start the posting. Kale, Dore, Pandre लाइबिलिटी में दिया है आपका, ये पोस्टिंग आपको यहाँ पे करना है. तो यहाँ पे आएगा काले, गोरे, पांडरे. सेम आपको यहाँ पे कॉलम बनाने, काले, गोरे और पांडरे. तो यहाँ आएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, नॉट कैरी डाउन, ब्रॉट डाउन. इट्स ऑलवेज कम ब्रॉट डाउन. तो काले कैपिटल इज 11,000, 15,000, 8,000. These 3 we are going to be write in your partner's capital account. And after that, second is bills payable. Now bills payable we are supposed to write here. So bills payable it is given 2,000, and we write in the outer column. Reserve fund is a partners distribution. Now reserve fund, how much it is given? It is given is a 4,000. Out of 4,000, ratio of 3 upon 8. We are calculating first of the Kale reserve fund amount. So that means we are simply 8 पंचे 40, 500, it's come 1,500. So we can write here 1,500. After this 1,500, second partner also is the same ratio, then 1,500, and 15, 3,000, and second one is built on 1,000. So there is no need to be save your time for calculation. Very easy. 4,000 में आपको तीनों में बांटना था. तो पहला पार्टनर था 3 और 3, ये दोनों का सेम है. तो अगर पहले का 1,500 तो दूसरे का 1,500 ही आएगा. एंड लास्ट वन था 1,500, 3,000 इज देयर, और 4,000 आपका पूरा अमाउंट है. तो उसमें से आपका 3,000 चला गया, तो 1,000 बचा किसका? पांडरे का. Next, liability side is get over now. Now building is given. We can write building as it is here in asset side. It is liability. Building how much it is given? तो बिल्डिंग का जो भी अमाउंट है 10,000. एडजस्टमेंट है बिल्डिंग का. नो, देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑफ बिल्डिंग. So we can write in outer column 10,000 डायरेक्टली बाहर लिख देना है. Plant and machinery adjustment है. You can write plant and machinery. And what is the value of plant and machinery?
is 10,700. We write in the inner column. Next, livestock. It is printing mistake. Printing mistake. LICE is not LIVE. Livestock. First of all, what is the meaning of livestock? Livestock is one type of assets which is belongs to the real living thing. Assets. जैसे मान लो कोई लव बर्ड्स बेचता है, तो जो बेच रहा है उसके लिए वो लाइव स्टॉक है. कोई घोड़ा बेचता है उसके लिए लाइव स्टॉक है. कोई गाय और भैंस बेचते हैं उसके लिए वो लाइव स्टॉक है. जो भी पशु पालना और अपने दुकान को उसको सेल करना, ट्रेडिंग करना, वो उस बिजनेस फॉर्म के लिए लाइव स्टॉक है. यहाँ पे भी ये तीनों पार्टनर का लाइव स्टॉक दिया है. मतलब ये टोटल बिजनेस में इन्वॉल्व है जहाँ पर वो ऐसा एसेट है जो निर्जीव नहीं है, वो सजीव है, विच इज़ नेचुरल थिंग. लाइक घोड़ा बेचना, घोड़े का उनका दुकान होगा, लव बर्ड्स का दुकान होगा, मछली फिश स्टैंड आता है उसका दुकान होगा, वो सब लाइव स्टॉक है. तो इट इज़ 10,000. इट इज एडजस्टमेंट इज देयर. लाइव स्टॉक, या एडजस्टमेंट इज देयर. सो वी कैन राइट लाइव स्टॉक हियर. And what is the value of livestock? 10,000. इनर कॉलम में लिखना है. And what is next? Debtors. Debtors also adjustment is there. We can write here. एक लाइन छोड़ने जाना है. Debtors. And what is the value of debtors? Is 5,000. We can write in inner column 5,000. And thereafter, stock adjustment is there. Yes, stock also adjustment is the value. It's 6,600. So we can write here stock एक लाइन छोड़ के stock 6,600. So these all the posting we did. And बैंक का posting आपका डायरेक्ट बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा. वो 2-3 लाइन छोड़ के डायरेक्ट आप यहाँ पे बैंक ले दो 6,600. So these all the things where we are getting the posting from the balance sheet. Balance sheet से हमने सिर्फ posting किया. You can't believe it. इधर भी आपको 8 से 1.5 नंबर मिल जाए. 1.5 मार्क आपको इसका इसे ये पोस्टिंग का ही मिल जाए. यहाँ पे पोस्टिंग का इसका मिल गया, बिल्डिंग का मार्क्स मिल गया, इसका मिल गया. आउट ऑफ 10 बिल्स पेबल का मिल गया. आउट ऑफ 10 यू विल गेट द इजिली 1.5 मार्क विथ हेल्प ऑफ पोस्टिंग. आपने क्या किया, सिर्फ बैलेंस शीट को ओल्ड बैलेंस शीट का दो देखा और आपने कॉलम बना दिया, सिर्फ पोस्टिंग किया. कौन सा चीज़ कहाँ आएगा, कौन सा चीज़ कहाँ आएगा, उसको हम पोस्टिंग करते हैं. दैट मीन्स यू आर डिड द पोस्टिंग, यू विल गेट द 1.5 मीन्स इक्वल टू 2 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल गए आउट ऑफ 10. नाउ एसेट विल बी रीवैल्यूड ऑफ 6,300. तो अगर एसेट का वैल्यू रीवैल्यूड हो रहा है 6,300 में, तो सबसे पहली बात तो एसेट है कितना, स्टॉक 6,600 है और अभी 6,300 में रीवैल्यूड हो रहा है. रीवैल्यू मतलब नया वैल्यू, वो जो कि आउटर कॉलम में आएगा. और इसका डिफरेंस 300 रुपया हुआ. ये कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है. यू कैन राइट डिप्रिसिएशन, यू कैन राइट, बट स्टॉक का रीवैल्यू हो रहा है एंड यू कैन राइट डिप्रिसिएशन ऑल्सो, नो प्रॉब्लम. रीवैल्यू भी लिख सकते हैं. ये 300 रुपया हुआ. 300 रुपया जब भी एसेट, ध्यान से सुनो, प्रॉफिट का एडजस्टमेंट वही आएगा जब एसेट डिक्रीज होगा. और लाइबिलिटी है तो इंटरेस्ट तो इधर आएगा. एसेट बढ़ रहा है तो यहाँ पे आएगा, लाइबिलिटी डिक्रीज यहाँ पे आएगा. यहाँ पे एसेट कम हो रहा है इसलिए यहाँ पे 2 स्टॉक बनते यहाँ पे आएगा और अमाउंट आएगा 300. हाउ मच, कितने रुपये से कम हो रहा है, 300 से. तो दूसरा इफेक्ट आपका 300 यहाँ पे आ गया. तो 2 इफेक्ट आपको बताने हैं, 300 यहाँ पे, सेकंड इफेक्ट यहाँ पे. सेकंड चीज़ है प्लांट एंड मशीनरी 10,000 हो रहा है. तो प्लांट एंड मशीनरी इट इज गिवन 10,000. रीवैल्यू मतलब नया वैल्यू हो रहा है तो वो आपका आउटर कॉलम में हो जाएगा 10,000. अब ये 700 रुपये यहाँ पे भी कम हो रहा है तो आप यहाँ पे माइनर डिप्रिसिएशन करेंगे. 700 रुपये कम हुआ तो फिर 700 रुपये यहाँ पे आएगा टू प्लांट एंड मशीनरी एंड 700 राइट हियर नाउ. उसके बाद नेक्स्ट है लाइव स्टॉक 10,200. अब लाइव स्टॉक जो है 10,200 दिया है. लाइव स्टॉक 10,000 ऑलरेडी है और रीवैल्यू 10,200 हो गया. तो वी कैन राइट 10,200 हियर. और 200 रुपया यहाँ पे, 10,000 का 200 रुपया आपका ये बढ़ रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, अप्रिशिएट हो रहा है. तो 200 रुपया जो बढ़ रहा है तो आप यहाँ पे अप्रिसिएशन लिखेंगे. और ये 200 रुपये बढ़ा तो एसेट बढ़ता है तो यहाँ पे लिखेंगे बाय लाइव स्टॉक 200. इस तरह से आपका ये हो गया. ऑलरेडी मेंटेन 10% ऑन डेटर्स बोला है तो पहले के में सिर्फ डेटर्स ही दिया था तो यहाँ पे 10% हम लोग डेटर्स में निकालेंगे. वी कैन कैलकुलेट 5,000 इज ऑलरेडी गिवन. उसमें से ऑलरेडी माइनस हो जाएगा 10%, 500 रुपये हो जाएगा 4,500. ऑलरेडी इज अ लाइबिलिटी. तो पहले लाइबिलिटी 0 था, अभी 500 हो गया, नहीं लाइबिलिटी बढ़ गई. लाइबिलिटी बढ़ती है तो यहाँ पे आता है
कितना आ जाएगा 500। तो इस तरह से आपका ये हो गया। और 100 टू बी सेकंड एडजस्टमेंट अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले थर्ड मैंने बता दिया। फोर्थ है 100 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स इट इज ऑलरेडी अपने यहाँ पे लिखना है। क्रेडिटर्स का वैल्यू कितना दिया है 8,900। अब इसका राइट ऑफ कितना हो रहा है 100 रुपये हो रहा है, ओनली 100 रुपीज़, यानी राइट ऑफ 100, तो ये हो रहा है 8,800। अब पहले 8,900 था, अभी 8,800 हो गया उसका नया वैल्यू। दैट मीन्स लाइबिलिटी कम हुआ या ज़्यादा हुआ? कम हुआ। कितने रुपए से कम हुआ? 100 रुपये से। तो लाइबिलिटी कम होता है तो हम लोग यहाँ लिखते हैं प्रॉफिट एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड 100। तो इस तरह से आपका मैंने एडजस्टमेंट 1, 3, 4 कंप्लीट किया। सेकंड एडजस्टमेंट का गुडविल का एडजस्टमेंट है, जो कि होमवर्क है, आपको घर पे करना है। मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, बट डेफिनेटली ये बहुत इजी एडजस्टमेंट है। लास्ट 2-3 प्रॉब्लम आपने किया होता तो वैसे ही सेम टू सेम है। इसमें ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो नहीं है, मतलब डेन रेशियो वाला नहीं है। जो भी गुडविल होगा वो ओल्ड रेशियो में बटेगा, एंड अमाउंट पेबल जो होगा वो जो भी बैलेंस इन आएगा पांड्रे का रिटायरमेंट पार्टनर का, वो डायरेक्ट लोन अकाउंट बताना है, उसको लोन बता के फिर लाइबिलिटी में आपको शो करना है। बट थोड़ा सा मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ तक, क्योंकि अब यहाँ तक करने का मतलब ये हुआ कि आपका एक टोटल हो रहा है 300 और इसका हो रहा है कुछ 1500। तो यहाँ पे 300 हो रहा है, 1500, यहाँ पे 300 हो रहा है। अब इसमें से माइनस किया तो 1200 आया। 1200 आया तो यहाँ पे आएगा बाय P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में लॉस। ये लॉस हो गया पार्टनरशिप फॉर्म में, रिटायरमेंट में लॉस हो गया। अब ये 1200 तो जो है ये 1500 आपका टैली तो हो गया, पर ये 1200 तो आपको तीनों में बांटना है। तीनों में कौन? काले, गोरे और आपका पांडरे। जब इसको रेशियो में बांटोगे तो आपका 450 और देन आफ्टर 300। अभी कैसे आया मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि मान लो 1200 रुपये आपका लॉस आया, आपका 3,332 है रेशियो, 3/8 किया। देन आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो 12×3=36, 8 का पाड़ा पड़े तो 8×4=32 हुआ, फिर 4 गया, 8×5=40, 450। तो 8 का 3:2, तो इसका 450 आया है, तो इसका भी 450 होगा। लेकिन 1200 में जो बचा नेक्स्ट पार्टनर का, तो ये 450 होगा, तो दूसरे का कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ईजी है। वो जो आपका लॉस आया वो आपको पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में शो करना है। डेबिट साइड में ये लॉस यहाँ पे शो करना है। यहाँ लिखना है टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये लिखना है, और यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट में लॉस। और ये अमाउंट 450 और 300 ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस तरह से मैंने आपको अब तक जितना बताया वो आपको 8.5 मार्क के लिए बराबर है। एक एडजस्टमेंट सॉल्व किए और फिर बाद में टैली किया तो आपको पूरा 10 मार्क मिलेगा। होमवर्क छोटा सा मैंने आपको एडजस्टमेंट नंबर 2 दिया है। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग न्यू प्रॉब्लम से स्टार्ट करेंगे। टिल टाइम यू कैन कैरी ऑन and go study. Any doubts, any problem, you can call me. I will explain. Thank you very much. Stay at home. Bye bye.